Okay, so today we are going to discuss 10th chapter, the sermon at Banaras, page number 133. ओवरव्यू थोड़ा वापस देते हैं, क्या था इसके अंदर. There is a great personality, Gautam Buddha, and the chapter is about, जहाँ हमने लास्ट में टॉपिक पूरा हुआ था वहाँ चैप्टर पूरा ही हो जाता है, उसके बाद कुछ है नहीं चैप्टर में ऑलमोस्ट. Gautam Buddha, a great personality, but he becomes a great when he faced a lots of things. Okay, in simple word, knowledge learning comes from a great experience. ओके हमको महामारी हमने पेपर में और सब जगह पढ़ा था, लेकिन लाइव फेस करने के बाद पता चला कि महामारी होती क्या है. आर यू गेटिंग पॉइंट? कि ये सिचुएशन में बिहेव किस तरह करना होता है, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाता है. यू आर अ लाइव एग्जांपल. आई थिंक 100 years ago सेम सिचुएशन वाज अराइव लाइक इन प्लेग. यू नो प्लेग बिग महामारी, एंड आफ्टर 100 years दिस हैपेंस. So the same concept is when you experienced anything, you will get to know and you will get to learn. Okay. Now here there is a changes I explained earlier. That was little bit mistake. I thought that the son of Gautam Buddha died, but the situation was something else. He was a prince. He married, and when he was gone for a hunting, there he saw a sick man. Okay, you know what, जो राजा होते हैं उनके बेटे होंगे, उनकी तो लाइफ मौज की होगी, उन्हें बाहर क्या चलता है कोई लेना देना नहीं है. तो ये एज अ प्रिंस when he was out for hunting, he first saw sick man. Then he came to know that this kind of persons also exist on the planet. हम किसी पागल से मिलेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा पागल भी होते दुनिया में. सेम कॉन्सेप्ट इज a sick person से मिला, and then he came to know there is a sick person also. And after that he came across a man who was an aged man, old age. So he, at first for him it was new. Okay, he was thinking life is something else, but when he faced the situation he came across these words. First, sick man, मतलब बीमार लोग भी होते हैं, इंसान बीमार भी पड़ता है. Second, old age man, इंसान बूढ़ा भी होता है. And then funeral procession means death. Now the word death stuck in Gautam Buddha's mind. That death. Okay. After that, finally a monk begging for alms. Last में एक आया monk. Okay. He was not the monk at the time. A monk came for begging. Means what? Monk now he is not socialized. वो समाज से दूर है, उसको खुद कुछ नहीं करना होता है. he is on the way for enlightenment and learn and means truth and something else, spiritual knowledge. you know ना बाबा, उनकी फैमिली कौन है अपने को नहीं पता हो, लेकिन वो कुछ और ही करने पे चले जाते. ओके, सेम कॉन्सेप्ट ही है, अब पता चल रहा है. ओके. Now after that he gave a sermon, that a spiritual talk at Banaras near Ganga river. वहाँ उनकी पहली से पास में प्रवचन कह सकते हैं, वहाँ उन्होंने पहली चीज की. So he told a story about a lady. He discussed about that. Okay, bring me mustnut. First lady told that lady was he had only one child and he died. And she was crying, and someone said that there is a Muni who can help you. So she went there and she asked, please, I want my boy again. Please do something that he may alive again. So he said, okay, I will do. Bring me mustard seed from everywhere or anywhere, but from which place that not a single person has died from that family. This was his condition. So she went for searching, and at that time she realized what? That she became selfish. She became selfish in her grief, in her pain. Okay.
उसके खुद के पेन में वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गए कि उसे ये नहीं दिखा दैट एंटायर वैली इज फुल ऑफ सॉरो, एंटायर वैली इज फुल ऑफ सॉरो. Okay, and here there was a flickering and extinguished. The Buddha said here now we'll move page number 134, second last line. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and grief and combined with pain. There is pain. The life of mortals in this world is a trouble and grief and combined with pain. Means what? हमारे लाइफ में सब कुछ होगा. फर्स्ट क्या होगा? ट्रबल भी होगा, ग्रीफ भी होगा और पेन भी होगा. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. सिंपल सेंटेंस, इफ यू आर बोर्न वन डे यू विल डाई. सिंपल मीन्स नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज बोर्न एंड स्टिल अलाइव. नॉट अ सिंगल. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ. आई टोल्ड यू अ लाइन इन द प्रीवियस लेक्चर कि बहुत अंधेरा होने के बाद उजाला होता है. दैट बहुत अंधेरा इज व्हाट मीन्स, एनीवन वांट टू से दैट बहुत अंधेरा इज डेड एंड. अगर आपकी डेथ लिखी होगी ना तो लास्ट मोमेंट पे, सॉरी टू से दिस वर्ड्स, लास्ट मोमेंट पे यू विल हैव टू सफर अ लॉट ऑफ पेन, सॉरी अ लॉट्स ऑफ पेन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कंडीशन होता है डेड एंड पे. Okay, after lots of pain, now you are relieved. Okay, this is the simple concept of being a human. Similarly, when you come on this planet, then also you are crying. Okay, means beginning and the end is full of sorrow. तो हम जब शुरुआत में भी रोना है, एंड में भी रोना है, तो बीच में क्यों रोना है? This is गौतम बुद्ध. जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा. यस, नाउ वो इट्स अ फैक्ट कि हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं. अभी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर किसी के घर में कुछ हो जाए, ऑफ हो जाए, तो हम इतने अपसेट होंगे. वाई? वी आर नॉट अटैच्ड विद दैट पर्सन. सिंपल लॉजिक. दैट स्टेटमेंट. ओके, मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूँ, ये बोलना आसान होता है, जिस पे बीत रही होती है उस पर मुश्किल होती है. तो गौतम बुद्ध सेज दैट यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग. दैट वाज हिज स्टेटमेंट. मीन्स व्हाट? तुम दुनिया भर के सबको देखो, सबकी हालत एक जैसी ही है, तुम्हें इस चीज को भूलना पड़ेगा. आफ्टर दैट, एज राइट फ्रूट्स आर अर्लियर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. इमोर्टल्स मीन्स व्हाट? अमर. Immortals means amar. No one is amar here. Okay, means if you are born today, there will be a day when you will be vanished permanently. Okay, so is the life of mortals. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, this is the life of a mortal. It's a simple example that says अगर कोई मटका बनाया गया है, इसलिए बनाते हैं उसमें पानी भरने के लिए, बट एक ना एक दिन वो टूटेगा. सिंपल कॉन्सेप्ट. एंड इट वाज क्रिएटेड बाय लॉट्स ऑफ एफर्ट. कुम्हार जो पॉट है वो ये सोच के नहीं बनाता कि कल को तो टूटने ही वाला है, क्यों इतनी कौन जला इसके पीछे. देन आल्सो ही इज गिविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट. ही इज ड्राइंग एवरीथिंग, ही इज मेकिंग डिजाइंस, ही इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज पॉट कि ये टूटेगा नहीं. द फर्स्ट वर्ड सेज कि हम वी आर आप में से कोई अब तो आई थिंक कोई जाता नहीं होगा इस तरह से पॉट लेने, सबके पास तो रेफ्रिजरेटर है. बट मैं गया था तब यूज देयर इज अ टेक्निक ऑफ चेकिंग द पॉट वेदर इट इज गुड और नॉट, एंड बट देयर इज नो वे ऑफ फॉलिंग थ्रोइंग लाइक दिस. कोई वे नहीं है चेक करने. बट अगर वो पॉट बना है तो टूटेगा जरूर. सेम कॉन्सेप्ट. बट इट डजंट मीन कि उसको उस इंटेंशन से बनाया जाता है. उसको ये इंटेंशन से बनाया जाता है कि वो बेस्ट में बेस्ट दिखे, जब तक रहे तब तक अच्छा रहे. सिमिलरली हम भी जब तक रहेंगे तब तक इंसान बने रहेंगे. बात को समझना है. एंड सो द लाइफ इज simple. Life is both young and adult, both those who are fools and those who are wise,
all fall into the power of death, all are subject to death, all are subject to death. Tell everything. Of those who overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. Here one of the example is कि slaughter means you know ना, कसाई खाना. Slaughter means कसाई खाना. मीन्स जिस तरह से ऑक्स को भी इस कसाई खाने से पास होना पड़ता है, सिमिलरली हर एक बंदे को इस तरह से पास होना पड़ता है. दिस इज गौतम बुद्ध. So the world is afflicted with the death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. So what he says कि भाई आपको पता है हम अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा हमको पता है ये बात. We know that. ओके. सो वो सोच के अभी का खराब नहीं करना होता. वो सोच के कल हो जाएगा. तो लेट मी टेल यू कि सपोज आप में से काफ़ी लोगों को बाइक चलाना नहीं आता होगा, किसी लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आती होगी. तो फर्स्ट कंडीशन सेज हियर कि ध्यान से चलाना, गिर मत जाना. यू नो दैट कि तुम गिरोगे तो खरी. चलो एग्जांपल लेते हैं साइकिल. स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमको ये पता होता है कि गिरेंगे तो जरूर, लेकिन वो डर के कारण साइकिल नहीं चलता, वो छोड़ते नहीं उस चीज़ को. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं. बट मॉम सेज कि भाई देखना गिरना मत जाना. लेकिन बताऊँ जब तुम सीख रहे होते हो तो टेंशन नहीं. जब तुम फुल स्पीड में चलाने लगते हो तभी जब गिर जाते हैं. तो कंटेंट इज अबाउट होने वाला तो होता है, लेकिन इट सेज दैट उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लाइफ को नहीं जी सकते. जो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है ना, उसकी सारी पेन खत्म हो जाती है. ओके. मीन्स कल हमको चोट लगने वाली है, उसका आज सोच के धीरे 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 साइकिल चलाएंगे तो बाप जब में भी साइकिल नहीं सीख पाएंगे. हमको आज सीख लेना है, जो होगा देखा जाएगा. सेकंड थिंग, अपने आप में से काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम इंजेक्शन ली होगी तो वो लगने से पहले ही जो भी गालियां आती है सब बोल देते हो. लगने से पहले, जब लग जाएगी तब पता भी नहीं चलेगा आपको. सी व्हाट दैट इज कॉल्ड अ पेन इन योर माइंड. ओके. वो लगे धीरे 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 करके वो गई नहीं है अभी तक अंदर. देयर इज अ डिस्टेंस. लेकिन फिर पूरा गांव आपको पकड़ लेता है, आपकी जुबान को सब कुछ पकड़ के नीचे चले जाती है. दैट प्रॉब्लम सॉल्व. और फिर हम 1.5 घंटे रोते हैं. तो दैट इज दोनों यूजलेस. उतना दर्द होता है नहीं. ओके. सो दिस इज कॉल्ड माइंड सेट, आवर ओन माइंड सेट. दैट्स इट. ओके. एंड इट सेज नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग. वीपिंग मीन्स व्हाट? क्राइंग वेरी कामली. Grieving means depression, literally sad. Will anyone obtain peace of mind? First thing, हमारे माइंड को शांत करने के लिए हमें दो चीज से थोड़ा दूर रहना पड़ता है. ओके. दो चीज से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, वरना हम इस चीज पे कभी अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे. ओके. हर रोज सोच. His pain will be the greater and his body will suffer. जो हमने एग्जांपल दी थी साइकिल की और इंजेक्शन की. ओके. उससे सिर्फ क्या होता है? सफरिंग होती है. ओके. लेट मी टेल यू, अगर सफरिंग सिर्फ 6 मिनट का है. ओके. फॉर एग्जांपल हम तुम सबको तो बहुत फैक्ट की बात, सपोज अगर हम कहीं जाते हैं और हमें चोट बहुत ज़बरदस्त लग जाती है, उस पर ड्रेसिंग करना होता है. तो ड्रेसिंग काफ़ी पेनफुल होता है, या फिर बैंडेज लगाना होता है. दैट इज लिटिल बिट पेनफुल. ओके. किसी को टाँका लगा है कभी? सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ. वेरी गुड. मीन्स दैट इज लिटिल बिट पेनफुल. बट सपोज दिस इज द लाइन. When are you able to watch this line? This is the line of sorrow. हमें इतना ही सहन करना है, but we have to face this. हम इसे कितना बड़ा बनाते हैं? ये हमने बना दिया है. ओके. इसको यहाँ पे ला देते हैं. सिंपल. ये क्या कर रहा है? डर जनरेट कर रहा है. ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा है, कितना हैंडल करना है. अब ये क्या कर रहा है? पता है तुझे क्या हो गया मेरे साथ? दिस इज द थिंग. आर यू फॉलोइंग क्लास में कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? अब ग्रेट गौतम बुद्ध ने बोल दिया है, पर हम लोग इतने तो ग्रेट है नहीं जितनी हाई लेवल की बात समझेंगे. सिंपल चीज. ओके. और सबसे बड़ी बात, इसको और भी लंबा करते हैं लोग 6-6 साल तक.
और इसको भी लंबा कर देते हैं. So it just says that you are suffering and with you your entire family is suffering. Okay, entire family is suffering. हम कुछ और एग्जांपल्स से समझाएंगे इस चीज को. अगर हम 10th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, भगवान ना करे किसी के ऐसा सबके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर किसी कम मार्क्स रह जाते हैं तो पहले क्या सोचता है, क्या सोचता है, कितनी मेहनत की थी यार और मेरा ये रिजल्ट आया. तो हमने ये तो देखा ही नहीं यार कि हमने तो कुछ भी तो आया ना आपका रिजल्ट, लेकिन बट दिस इज जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंड इट सेज दैट वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन ये है, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन ये है दिमाग. ओके, अगर आपको 1.5 घंटा चुपचाप बैठने के लिए तो आप कुछ पागल ही जो कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो आप सिर्फ ये कर रहे हो और ये पोर्शन कर रहे हो. दैट्स इट. गौतम बुद्ध ने बोला है कि पीस ऑफ माइंड मीन्स व्हाट? रिलैक्स. व्हाटएवर इट विल कम इट विल पास. जस्ट look at the thing, observe that thing, and when it pass, forget that. कितना सिंपल सा स्टेटमेंट. ओके, yet see he will make himself sick and pale. मीन्स हम सिर्फ वो अपने आप को बीमार कर रहा है, अपने आप से अपने दिमाग को बीमार कर रहा है. क्या देखिए, जो दिमाग अगर ज़्यादा डिप्रेशन होगा आपको लंबे समय तक, तो आपके शरीर पे अफेक्ट होगा, आपके चेहरे पे अफेक्ट होगा, आप पतले हो जाओ. ओके, सिंपल. तो बहुत हेल्दी होते हैं तो टेंशन नहीं. He who seeks peace should draw out of the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become a composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Now, बहुत practical. How many of you, here chapter is over, कि अगर आप इससे निकल जाओगे तो आप, now tell me whether it is possible to forget this portion. How many of you, you have to raise your hand. सबकी शक्ल में देखने से टैक्स आ. How many of you can say that this portion can be ignored? Good. तो भी रेशियो नहीं. बाकी का कहना है कि ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अब कितना कहना है ये इग्नोर नहीं हो सकता है, इग्नोर नहीं हो सकता है. तुमने दोनों में हाथ चढ़ा दिया, मतलब रोना भी है और चुप भी रहना है. नॉट पॉसिबल एट ऑल. यू सेज नॉट पॉसिबल, यू सेज पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल. बाकी के बच्चे, आई नीड आंसर यस और नो. इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि पॉसिबल होता है. नाउ हमें अगर कंडीशंस पे देखें तो हम चैप्टर तो बरोबर है, इट डिपेंड्स ऑन दिस पोर्शन. ये कितना भयानक है उस पर डिपेंड करता है. ओके, अगर ये लिटरली बहुत पावरफुल, जस्ट इमेजिन ये इतना बड़ा होगा. सी you can see here the thickness of the problem. ये जितना भयानक होगा उतनी लंबी बड़ी होगी हमारी. Am I right? एंड अगर जो स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि ये इग्नोर करना पॉसिबल है, तो डू यू हैव एनी एक्सरसाइज फॉर दिस दैट यू कैन इग्नोर दिस पोर्शन? वी विल कम हियर आल्सो. आई वांट आंसर फ्रॉम यू आल्सो. यू आर नॉट अ किड, सबको सब समझ पड़ता है. एंड काफी स्टूडेंट ने कुछ चीज फेस की होती है लाइफ में, अभी तक की होगी और आगे भी करोगे. तो जस्ट थिंक दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बिगेस्ट समथिंग इन आवर लाइफ, कि ये पोर्शन इग्नोर करना है. चलो, डू यू हैव एनी एक्सरसाइज? जिन्होंने हाथों पर क्या था, यू हैव एक्सरसाइज? वेट, आई विल आस्क. किसी और के पास कोई एक्सरसाइज है इसके लिए? लिटरली यू हैव टू, हमें इस चीज को इग्नोर करना है. ओके, एंड आई डोंट नो, हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें नहीं पता कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ के, फाइनेंशियल कंडीशन, कोई डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसको इग्नोर करना होगा. तो यस, स्टैंड अप. मेडिटेशन, एक्सीलेंट, गुड. और कोई? आंसर तुम तो दे चुके हो. अब डॉक्टर के पास हम जाते, डॉक्टर बोलते हैं आपको ये बीमारी है, तो तुम क्या पूछो लोग, इलाज क्या है इसका? सिमिलरली
यू आर डॉक्टर ना, आई एम पेशेंट, आई नीड अ डैम आंसर फ्रॉम यू, इसका क्या इलाज है? किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? अकॉर्डिंग टू मी, आपने मेडिटेशन कभी किया है? यू आर डूइंग एवरी डे ड्यूरेशन? एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलो एक बच्चा मुझे मिला है जो इस तरह से काम करती है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बस हम शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे, ओके? चलिए, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहां करना होता है, इन्वॉल्विंग यू योर एफर्ट इन समथिंग एल्स। हम इस कोई और काम में खुद को इन्वॉल्व करके इसको फॉरगेट कर सकते हैं, ओके? लाइक हमें अगर पता है कि 10 दिन बाद कुछ भयानक हादसा होने वाला है, तो 10 दिन उसके बारे में ना सोच के सारे काम कर डालो। दिस इज द ओनली वे एंड हर द ग्रेटेस्ट मेथड इज मेडिटेशन, ओके? हमें खुद को किसी और काम में ढालना पड़ेगा 10 दिन तक, तो ये बोल सकते हैं, ओके? नाउ हाउ मेनी सेज दैट इज इट पॉसिबल? स्टिल सम, यस, इट इज 60% सेज कि हाँ ये पॉसिबल है, ओके? इट्स ऑल राइट। मैं आंसर सबको हाथ ऊपर, जिसको जैसा लगे उस तरह से, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा आई अप्रिशिएट कि हाँ सर, अगर आपको नहीं पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है या होने वाली है, तो बहुत मुश्किल होता है खुद को डाइवर्ट करना। बट मैं चीज बता दूं, कोई धक्का मारने नहीं आएगा आपको। आपके पापा बोलेंगे अरे मूव करने हैं यार, कितना सोच सोच करेगा उसके बारे में। यू हैव टू मूव योरसेल्फ नाउ हियर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक वी हैव ओनली 4 मिनट्स? ये वाला पोर्शन भी हम गायब कर सकते हैं। अरे वाह, ये अच्छा। 5 लोग इधर मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आंसर का, उधर तो चलो समझे, डर तो पहले होता है, ऑलमोस्ट इधर इश्यू ज्यादा ऊपर हुआ है। हैंड्स डाउन। अब यहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने पहला वर्ड आपको बताया था एक्सपीरियंस। यहाँ एक्सपीरियंस हो गया है भैया, यहाँ एक्सपीरियंस हो गया है और हमने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है लाइफ में। तो सीखना, लर्निंग इज समटाइम्स लिटिल बिट बैड ऑल्सो। कुछ भयानक सीख लेते हैं ना, तो वो चीज दिमाग से जल्दी निकलती नहीं है। तो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सरसाइज फॉर दिस पोर्शन? सर इसके लिए भी माइंड डाइवर्ट ही करना पड़ेगा। माइंड डाइवर्जन। चलिए सिट डाउन। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट टुडे वी हैव लर्न समथिंग दिस गौतम बुद्ध कि हमें लाइफ में कुछ बेसिक चीजें, ओके? हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। आई हैव लर्न, ओके? आई एम एल्डर देन यू डेफिनेटली, मैं तुम्हारे जितने जब तक हूं नहीं, बट दिस एंटायर मेथड, this entire thing is life, okay? Watching the problem is coming and watching the problem is gone. This is the only life. यही चीज होती है जो हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। हियर गौतम बुद्ध चैप्टर, हमने एक लाइन में पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश की है, इस वन लाइन। बट आई अप्रिशिएट कि आपको चैप्टर को इस तरह से समझना होगा, ओके? द बेटर वे ऑफ लर्निंग टू एक्सप्लेन समथिंग। Okay, still we have 2 minutes. In the first lecture I have told you, पहला बेटा आपको पता चला स्टैंड अप, आपको पता चला समझ पड़ रहा है लेक्चर में, आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप अभी तक कहाँ थे? Sit down. आपने देखा आगे आगे डेमोन्स्ट्रेशन में दे दिया सबको कि किस तरह बिहेव करना है लेक्चर में। आपके पीछे वाले, आपके बाजू वालों को पता होगा अच्छी तरह से, ओके? आई एज्यूम दैट आप कुछ चुप बच्चों में से एक हो, ओके? जो प्लान पे कुछ नंबर ऑफ चुप बच्चे बचे हैं, उसमें से एक आप, एक ये, और वो 2 गायत्री से वो नहीं आए, गायत्री और आरती एब्सेंट। गुड, तुम बाहर जानवर बन जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इंसान रहो मेरे सामने, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। आप भी यहाँ पे अगर हम, okay, now it's only for the seconds. I will ask some questions, you will have to give me answer. उसके बाद हम थोड़ा ग्रामर सेक्शन इसका देखेंगे। चैप्टर का टाइटल ये है सरमन। व्हाट इज मीन बाय सरमन? स्पिरिचुअल टॉक। स्पिरिचुअल टॉक। What is a dissolution?
डिसोलेशन आपके पास बुक नहीं है बेटा पलक? लेक्चर ओवर।